हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स चैनल। ये है हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज इनिशिएटिव जिसमें हम एवरी डे 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो आपके competitive एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वीडियो 8 ऑफ आवर इनिशिएटिव। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 1। Which company did P.D. Singh serve as the CEO of before being appointed by Standard Chartered? स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने से पहले पीडी सिंह किस कंपनी के सीईओ थे? एज यूजुअल द टाइमर हैज बिगन एंड द राइट आंसर इज जेपी मॉर्गन इंडिया। जेपी मॉर्गन इंडिया एक कंपनी है जिसमें पीडी सिंह पहले सीईओ थे और अब उनको स्टैंडर्ड चार्टर्ड में नियुक्त कर लिया गया है। क्वेश्चन 2। What international recognition did N. Chandrasekaran receive in May 2023 and which industries did Tata Group expand under his leadership that contributed to his recent honorary knighthood? N. चंद्रशेखरन को मई 2023 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने किन उद्योगों का विस्तार किया जिसने उन्हें हाल ही में मानद नाइटहुड उपाधि दिलाने में योगदान दिया? What do you think is the right answer? Let's check. The answer is Chevalier de la Légion d'honneur. This is a French title and the Tata Group has expanded in the field of steel, automobiles and technology under his leadership. We are talking about N. Chandrasekaran. Moving on to question 3. Which company collaborated with the Indian Navy in building the modular cargo MCA barges recently launched, and how does this project align with India's Make in India initiative? हाल ही में लॉन्च किए गए मॉड्यूलर कार्गो MCA बार्ज के निर्माण में किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया है और यह परियोजना भारत की मेक इन इंडिया पहल के साथ कैसे संरेखित है? The timer is about to end. The right answer is Secon Engineering Projects Private Limited, and the project aligns with Make in India initiative by promoting domestic resources and expertise. Moving on to question 4 of the day. When will the first ever Olympic esports games be held and which company has been selected to host the event? पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स कब आयोजित किए जाएंगे और किस देश को इस आयोजन की मेजबानी के लिए चुना गया है? What is the right answer here? The right answer is 2027 and Saudi Arabia will be hosting this event. Just remember कि स्पोर्ट्स के सभी क्वेश्चन आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं फॉर 2 reasons. 1, स्पोर्ट्स में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और 2, ऑल क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली डायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में मार्क्स गेन करना सबसे इजी होता है, इसलिए कीप एन आई फॉर ऑल द स्पोर्ट्स न्यूज अराउंड यू। क्वेश्चन 5. Who launched the advanced AI chatbot named Grok 3, claimed to be the most intelligent AI ever developed recently? हाल ही में किसने एडवांस्ड AI chatbot Grok 3 लॉन्च किया जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह अब तक का सबसे बुद्धिमान AI है? What do you think is the right answer? I think this is much predictable. The answer is Elon Musk. अगर कुछ भी most intelligent, best in terms of AI and technology है तो आज के टाइम में एलॉन मस्क सबसे आगे चल रहे हैं, इसलिए दिस कैन बी अ चीट कोड फॉर यू कि अगर एलॉन मस्क ऐसा एक ऑप्शन है सो यूजुअली it is expected to be the right answer. Moving on to question 6. Which cities are the main focus of Madhya Pradesh's GCC policy 2025? मध्य प्रदेश की GCC नीति 2025 का मुख्य फोकस किन शहरों पर है? Which cities are the main focus? The answer is इंदौर, भोपाल एंड जबलपुर। यही MP की सिटीज हैं, so I think this could be easy to guess among the given options. Moving on to question 7. Which country won its first ever Asia Mixed Team Badminton Championship in 2025?
किस देश ने 2025 में अपनी पहली एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती? What do you think is the right answer here? Again a sports question. The answer is Indonesia. Question 8. Why did the Reserve Bank of India impose penalties on Shriram Finance, Ujjivan Small Finance Bank and Nainital Bank recently? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में श्रीराम फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और नैनीताल बैंक पर जुर्माना क्यों लगाया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, लीगल लोन डिसबर्समेंट या फिर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स? द आंसर इज नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स. जो हमारा आरबीआई है, इट्स द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई दो तरह से हमारी जो मनी प्रॉब्लम्स है या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. वन इज द क्वांटिटेटिव मेजर्स. क्वांटिटेटिव मेजर्स में कई उसके इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़े होंगे, उसके पास कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि कैश रिजर्व रेशो, जैसे कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एटसेट्रा, या फिर आपने रेपो का भी नाम सुना होगा. ये सारे हो गए क्वांटिटेटिव टर्म्स में वो कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करता है आरबीआई. लेकिन कुछ क्वालिटेटिव टर्म्स भी होते हैं, जैसे कि मॉरल स्वेजन, एंड हियर पेनल्टीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव टर्म ओनली. तो यहाँ पे नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स में पेनल्टीज लगाई गई हैं इन बैंक्स पर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9. अंडर द जी सफल स्कीम launched by the Gujarat government recently, how many talukas and districts are covered? गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई जी सफल योजना के अंतर्गत कितने तालुका और जिले शामिल हैं? This is a factual question. The answer here is 25 तालुका and 10 district. जी सफल स्कीम जो है the poorer families के लिए सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट्स इंश्योर करने की एक स्कीम है जो कि गुजरात गवर्नमेंट लाई है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? What are your guesses? Yes, if you've been following the news, the answer is ज्ञानेश कुमार. रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए भी 2023 में नया बिल या नया एक्ट लाया गया था, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट विल बी अपॉइंटिंग द CEC, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. लेकिन प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होगी. सिलेक्शन कमेटी नाम एडवाइज करेगी किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है, और इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड नंबर 3 कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री ही अपॉइंट करेंगे. कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर जो PM द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा. तो ये सिलेक्शन कमेटी प्रेसिडेंट को नाम देगी और इस नाम को ही एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस कर दिया जाएगा. ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं ऑफ द केरला कैडर, और ये पहले इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, एंड नाउ ही हैज़ बीन अपग्रेडेड टू द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. These were the questions of the day. Follow us on all our social media channels. If you liked the video, then subscribe to our channel on YouTube. And for all our PDFs, English और हिंदी दोनों में टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा. दिस इनिशिएटिव ऑन द टेलीग्राम इज़ फॉर फ्री. इसमें ना केवल हमारे क्विज इनिशिएटिव के क्वेश्चंस बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस की PDFs एंड इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड इवन स्टैटिक GK के डेली क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं. सो प्लीज़ ज्वाइन दिस and keep learning. Bye bye.